promptly. और कौन कौन एक्सपेक्टेड है साहब? रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस बोल रहा है। हाँ, रिकॉर्डिंग दिखा भी रहा है। पॉज कर दिए। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब. This is Ashok Bakshi from Zana Family Delhi chapter. I welcome all of you, our viewer and participant, on today's talk show, which is on the theme coping with shopping modern challenges. This happens sometime when somebody is sad and use shopping as a coping mechanism. So इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे. उसके लिए हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हैं प्रोफेसर विनय पांडे from all the way from Gwalior, who is a professor at Engineering College Gwalior, and he will initiate the discussion. So I request Mr. Professor Pandey, Vinay Pandey ji, to take it further from here. Thank you, ji. थैंक यू बख्शी साहब, थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग. आज फिर हम लोग इकट्ठे हुए हैं एक नया टॉपिक लेकर, एंड टॉपिक ऑफ द डे ऑन शॉपिंग. In fact, it is coping with shopping. There was a time, we all know, we all remember, we all recollect. We used to say, for taking something from the market, for getting something from a shop, we used to call it buy, B-O-Y, buy. So there is one word buy, then there is another word purchase. And nowadays, the most popular one is shopping. So normal requirements, our needs were fulfilled by the process of buying certain things, taking certain things from a shop, from a store, in return of our money. And those used to be very, very small items, very normal and very basic things which you used to buy from the market or from the shop. Then comes the purchase. Purchase generally deals with high value items, those items which may not be in the daily need list, but sometimes we need them, occasionally we need them, and they are actually high in price and mainly not available all over the places. So you may have to go to a bigger store, a showroom, township, places like that. Now these two words have been left behind, buying and purchasing. Now the new word has come, and that is nothing but shopping. We always listen to this word and come across this process in our family, in our circle, and slowly it has picked up momentum. Now it has become a kind of addiction, you can say. It has become a hobby, it has become a pastime, and so on and so forth. So we are particularly discussing on this process of shopping in two ways. First, we shall discuss it that how to cope with this addiction. If we are addicted to shopping, how not to do that, how to get rid of this addiction. And to conclude this, we shall also focus on certain class of society, certain mindsets of people who are using this shopping process as a tool for coping with their sadness, their depression, and things like that. So there are two facets of this talk. One is coping with shopping, that is how not to cope, how not to go for this addiction called shopping. And secondly, we are going to see those people who are addicted,
and addicted because they think that shopping could be a way of releasing their stress. So on these 2 points, we shall be focusing today. Firstly, the shopping as a process. You see, nowadays it has become something like a fashion to go for shopping. If you are bored, you go for shopping. If you are having some kind of a stress, you go for shopping. Some people make shopping as their hobby. They say, my hobby is shopping. That is very strange, especially for the class of our age group people. It becomes very unbelievable that shopping could be somebody's hobby, because after all, shopping involves spending of your money. It involves bringing that item to your place, to your home, and using them, making use of them. So until unless you need a thing, why purchase that? That's the first question. Sometimes we just go and purchase the things. We just order the things online. Now it has become online shopping. So the scenario is still having tremendous change. You don't have to go to the market, don't go to the shop. You can just pick up your mobile and order the things you want. So the problem is unnecessary shopping has been on increase in the recent times. Those things which are actually not needed or not urgently needed, those things also are being purchased or shopped online or from the store. This not only troubles you financially, but it also gives a lot of abundance in your home, in your living. Unnecessary things you purchase, and untimely you make these shoppings, you make these purchases. So in my personal view, we should be very, very logical, very, very understanding in this regard as to what we have to buy, how much we had to buy, or when we had to buy, and also from where we have to buy. So if these things can be kept in mind, then this shopping process can be controlled. And if it is under control, there is nothing bad about it. We all need certain things from the market, and without that, it is very difficult to carry on with the life, without daily life. So there is no harm. But if it exceeds its limit, its normal limit, then it becomes very harmful for you in person, for the family, for the member of the family who is running the show. It all creates mesh. So if it is under control, it's well and good. Now, to have that, we should have certain kind of discipline in our own mind, in our family, in our group, so that only when the thing is required, when an item is needed, then we should go for buying or shopping. We shall discuss many more points on this, but before that, I'd like to request Mr. Ashok Bakshi to throw some light on these points on which I have highlighted certain points. May I request Ashok Bakshi sir to please come online? Yes, thank you, Professor Pandey. You have muted yourself. Yes, please, sir. Can you hear now? आवाज आ रही है? Yeah, we can hear. जी, आ रही. Thank you very much for very nice explanation you gave about the compulsive shopping. And you said rightly that the time is changing and the way of shopping is changing. And earlier, what happened? People used to go to buy things in the market. और एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है. सुना आपने? जी. तो लोग देख के ललचा जाते हैं, अरे वाह क्या. और आजकल वो डिस्प्ले, आप देखिए शोरूम में डिस्प्ले कैसा गजब का होता है. तो अगर आदमी को चीज की जरूरत नहीं भी है तो वो खरीद के आ जाता है, वो उसको लेके आ जाता है.
एक ये जी जो जी हमारी सोसाइटी बहुत जबरदस्त कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़ रही है, जो कि हमारे वेस्टर्न देशों की देन है। और जी नए नए तरीके वो लोग मार्केटिंग के इजाद कर रहे हैं, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को टू बाई थिंग्स विच, मतलब जी लोग सोचते नहीं है, खरीद लेते हैं, बाद में सोचेंगे, पहले जी खरीद लेते हैं। तो हमें याद है कि काफी साल पहले जब हम बहुत बुद्धिज्म में इन्वॉल्व थे, आई यूज्ड टू लिव ऑन द माउंटेन, और वहां पे हमने लाइफ देखी, जिंदगी माउंट लोगों की बड़ी सिंपल लाइफ थी, और कुछ एक जोड़े कपड़ों के होते थे, तो मैं भी वैसे ही रहने लगा। और शादी के बाद हमें थोड़ा सा वाइफ ने समझाया कि अब तो आपने शादी कर ली है, तो आपको सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, अच्छा जी नहीं तो तुम मॉन्क क्यों नहीं बन गए, शादी क्यों करी। मैं सोच में पड़ गया। हाँ तो और वो उन्होंने जाके लाइन से जो है 3-4 सूट सिलवा दिए। हमने कहा इनकी क्या जरूरत इतनी। उन्होंने कहा जी ट्रैवल के लिए अलग सूट हैगा, कहीं शादी ब्याह में जाओगे उसका अलग कपड़ा हैगा, अलग सूट हैगा, और जी कैजुअली कहीं जाते हैं तो वो अलग हैगा। मतलब हर ओकेजन के लिए अलग अलग कपड़े होते हैं। मैंने सोचा भी जी नहीं था इतना। और इस तरह जो है, तो आई डू नॉट नो हम इसको लेडीज लोगों का कंपल्शन बोले हैं या जेंट्स का। जेंट्स का मुझे तो यही लगता है कि दे आर नॉट अ बिग शॉपर। मोस्टली लेडीज होती हैं, वही घर की शॉपिंग करती हैं, और टू सम हम्म एक्सटेंट दे आल्सो फाइंड क्लोथ्स फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द हस्बैंड। और लेकिन अब जो इतनी अति हो गई है कि हाँ बच्चे हैं वो सोचते भी नहीं है, सीधा ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, वो चीज घर आ जाती है। हाँ और हाँ हमारा सोचना उम्र के साथ जो बदल रहा है कि हम क्यों इतना ट्रैश इकट्ठा करें। वी आर बेसिकली क्रिएटिंग ए ट्रैश। हम धरती के ऊपर, धरती माता के ऊपर कूड़ा यस इकट्ठा कर रहे हैं। आप ये कहाँ निकलेगा, हम सामान खरीद रहे हैं, कहाँ जाएगा, तो कूड़ा बनेगा। और कूड़े को आपकी ऑडियो डिस्पोज करना। बीच में रुक रही है अभी आ रही है, कैन यू हियर नाउ। हाँ आ तो रही है हाँ वी कैन हियर व्हेन इट इज कमिंग इट इज लाउड एंड क्लियर बट इन बिटवीन इंटरप्ट हो रही है लेट मी, कुछ नेटवर्क का तो नहीं इश्यू हाँ वो भी है, यहाँ पर सिग्नल का चैलेंज भी है। और कैन यू हियर नाउ, हाँ हाँ इट अभी इज आ रही। ओके वी कैन हियर तो हमारा अल्टीमेटली कहना यही है कि तो इंसान को बहुत सोच समझ के शॉपिंग करनी चाहिए। जो बहुत ही जरूरत, निहायत जी जरूरत की चीजें हैं वो ले, और वरना उसका कोई अंत नहीं है, देयर नो एंड टू इट। वन कीप ऑन बाइंग 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 एंड देन वी आर क्रिएटिंग ए कूड़ा ट्रैश धरती माता के ऊपर। तो उसको, उसका भी ख्याल करना चाहिए हमें। तो हम अभी इस स्टेज पे आ गए, हम जी जी ट्राइंग टू रिसाइकिल ऑल दोज क्लोथ्स, नॉट टू बाई न्यू थिंग्स, नॉट टू ऐड न्यू थिंग्स। न्यू भाई न्यू क्यों, वन हाँ क्यों करें इकट्ठा सब ट्रैश इस तरह से। तो अब ये भी बात घूम फिर के उसी पे आ जाती है ना, हमारी इको फ्रेंडली थिंग्स पर, कि हमारी जो धरती माता पे कितना कूड़ा रोज ऑन द डेली बेसिस टन वाइज क्रिएट किया जा रहा हैगा, और जिनके रिसाइकिल के चांसेस बहुत कम होते हैं। खास करके कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनको रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल है। तो और जी बाकी ये कपड़ों का भी ऐसे ही है। आई डोंट नो वेदर समबडी इज रिसाइकलिंग द कपड़ा जो निकलता है, लेफ्ट ओवर निकलता है कपड़ा। और वैसे वही ना आजकल के टाइम में मतलब आइटम्स आर अंडर यूटिलाइज्ड पूरी तरह से उसकी यूटिलिटी हो ही नहीं पा रही है you take a cloth just wear for few months or few times यस, and just throw it away करेक्ट take another करेक्ट, new one यस, तो पूरी लाइफ उसकी यूज नहीं कर पा रहे हैं हम फुल कंजम्पशन नहीं हो पा रहा नहीं हो रहा, हाँ जी, ये दैट इज ट्रू। विडंबना है
बिल्कुल सही। पहले के टाइम में था कि कोई चीज हम लेते थे तो उसको एकदम एंड तक यूज करते थे, है ना। उसके हम लोगों की अलावा ऐसी मानसिकता भी थी कि हाँ, उसको रिपेयर करा लें, कट हाँ, जाए तो सिलवा लें, या कोई हुँ, चीज ऐसी है तो उसको रिपेयर करा लें। हुँ, लेकिन आजकल देखिए वो रिपेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो हुँ, खत्म सा ही होता जा रहा हाँ जी, है। इट इज बिल्कुल, ओनली यूज एंड थ्रो, रिप्लेस हाँ, करो। बिल्कुल। तो और एक तरह से दोनों ही। जी। उसके अलावा शेयर करने का भी बड़ा वो था, फैमिली में हाँ, शेयर करने का शेयर भी किया था। गया कि भाई अब हमको तंग हो गया है, अब आप इसको ट्राई करो, आप पहनो। तो इस तरह हाँ, कपड़े फैमिली में घूमते छोटे थे, वाले तो को हो जाएगा। वो भी रिवाज खत्म हो गया। यस। हम्म। वो ट्रेडिशन भी खत्म होता जा रहा है। अब कोई किसी को पुराना कपड़ा लेना पसंद नहीं करता हैगा, क्योंकि हर एक चीज़ का मास जी। प्रोडक्शन हो रहा है और हम्म। प्राइसेज़ भी बड़े इकोनॉमिकल हो गए हैं, वो हर एक की रीच में है और हम्म। लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं, इकोनॉमिक जी। कंडीशन इम्प्रूव हो रही है, सो पीपल आर टेंड टू बाय। तो एक ये भी चीज़ है, लेकिन इसके आपके सेम टाइम सिग्नल में कुछ दिक्कत है, वीडियो भी और ऑडियो भी। अच्छा, वीडियो ऑडियो दोनों ही बीच में रुक रही है ओहो, थोड़े समय के लिए, फिर नॉर्मल हो जाती है, चलने लगती है। ओहो। अभी कैसा लग रहा है? अभी आ रही है? आप वाई हाँ, अभी तो आ रही है, लेकिन वीडियो अभी सही है। वाईफाई से कनेक्टेड है या? हाँ जी, हाँ हाँ, वाईफाई में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वाईफ़ाई है, घर में वाईफ़ाई जी कनेक्टेड है। जी जी। So can you hear now? हम्म। हाँ, वी कैन हियर यू। हुँ, सॉरी जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो यही कह रहे थे कि ये इंसान को ज़रा सोच समझ के आजकल ये सारा इकट्ठा करना चाहिए। और क्योंकि इसके अलावा हमने एक चीज़ और देखी, हमारे यहाँ एक तबका है जो कोशिश भी करता है चीज़ों को रिसाइकिल करने का। मैं जी। आपको एक बड़ा अच्छा बताऊँ, स्टोरी इधर ये है, काफ़ी जगह है। एक जगह मैंने देखा था भरतपुर के आस-पास, ये जो अच्छा। कपड़े कपड़े जो होते हैं, जो लेफ्ट ओवर कपड़े होते हैं, उनकी कतरनें, जो कतरन होती है, हाँ। उसको वो रंगते हैंगे, उसको जो है डिफरेंट कलर में डिप करके, सुखा के और उसको फिर वीव हम्म। करते हैं। उसकी एक तरह से रस्सी बना के, हाँ सुतली बना हाँ। के, रस्सी बना के वीव करके उससे कारपेट बनाते हैं। अब वो कारपेट कारपेट जो बनाते है हैं। हैंडमेड, जो है रिसाइकिल किए हुए कपड़ों के कारपेट होते हैं। अब वो हम्म। जगह-जगह, कहीं मंदिरों में, कहीं मस्जिदों में, ताकि गर्मी में, धूप में लोगों को पाँव ना जले, हम्म। वहाँ डाले जाते हैंगे। तो ये बड़ा अच्छा लगा देख के कि हम्म। एक सदुपयोग हो रहा है इस चीज़ का। Instead जी of जी throwing जी। everything in the trash, that something is being made also out of this thing which can be recycled. तो हम्म। अब कहने का मतलब ये है, अब समझाते तो हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे लोग, आजकल के बच्चे जो जी। है, वो दे डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी। उनको पिंच नहीं हाँ, करता है। वो 2 बार नहीं सोचेंगे, सीधे ऑर्डर कर देंगे ऑनलाइन, और आ जैसा जाएगा। कि आपने कहा ना कि जो दिखता है वो बिकता है, हुँ, तो आजकल दिखने का इतना ज्यादा सुविधा है, हाँ जी। दिखना इतना ज्यादा सहूलियत भरा हो गया है कि हर जगह आप चाहे मोबाइल पे देख रहे हो या हाँ किसी जी। स्टोर में चले जाएं, इतना ज्यादा डिस्प्ले है और इतना ज्यादा वैरायटी है हाँ जी। कि आदमी तो अट्रैक्ट हो ही जाएगा। हुँ। बट इट हैज बिकम अ काइंड ऑफ एडिक्शन सर, बिल्कुल, नाउअडेज। बिल्कुल, धीरे धीरे बिल्कुल। करके ये एक तरह से एडिक्शन हो गया है, एक कंपल्सिव डिसऑर्डर टाइप का हो गया है। जी। जैसे एक मानसिक बीमारी होती है, सम बिल्कुल, काइंड ऑफ बिल्कुल, बिल्कुल। ऑब्सेसिव कंपल्सिव हाँ डिसऑर्डर जी, जो होते हैं, ओसीडीज होते हैं, हाँ जी। उसकी कैटेगरी में आ गया है। बिकॉज समटाइम्स कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मतलब उनको शॉपिंग कुछ समय तक नहीं किए तो हुँ। उनको बेचैनी होने लगती है कि भाई हाँ। 2 हफ्ते हो गए कुछ शॉपिंग नहीं किया, चलते हैं हाँ शॉपिंग जी, करने। हाँ जी, हाँ जी। दैट काइंड ऑफ थिंग। दैट इज़ तो ट्रू, दैट इज़ इस ट्रू। तरह की चीज तो बहुत ही डेंजरस है, ये बात अच्छी नहीं है। हाँ जी। बेसिकली इस चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए। हुँ, हुँ, और जैसा कि आपने कहा कि चीजों को अगर रिसाइकिल कर पाते हैं हम, अगर हुँ, हम उसको ज्यादा समय तक यूज कर पाते हैं, उसकी पूरी यूटिलिटी को ले हुँ, पाते हैं, तो हुँ। उससे बेहतर क्या होगा। अब बिल्कुल, जैसे कोई बिल्कुल। कपड़ा है, कोई मशीन है, कोई चीज है,
सामान है, बना है, अगर उसको अंत तक हम यूज करें तो उसमें बुराई क्या है? बिल्कुल बिल्कुल इट इज बिल्कुल। बेटर। अगर वो अभी सर्विस देने के लायक है तो वी हम्म, शुड बी यूजिंग। दैट ये इज ट्रू। जरूरी नहीं है कि उसको just because of certain new model has come in the market or someone has bought a different model, so I should also have one. इस तरह की जो मानसिकता है इसको खत्म करना चाहिए। We उस should be very wise in deciding when to stop, जी, when not to. करेक्ट क्योंकि करेक्ट। अगर ऐसा हम करते हैं तो न केवल हमारे लिए बल्कि ये पूरे सोसाइटी के लिए, पूरे मैनकाइंड के लिए अच्छी बात है। अब गुड़ कमर्शियलाइजेशन का, हर चीज का वाणिज्यीकरण इतना ज्यादा हो गया है हाँ जी, कि अब क्या कहा जाए, जो लोग इस बिजनेस में हैं, जो चीजों को हाँ जी, मार्केट में लाते हैं या हाँ जो जी। मार्केटिंग करते हैं, सेल्स करते हैं, हम्म, हम्म, उन लोगों के लिए तो फुर्सत नहीं इन सब बातों को बैठ के सोचने का। दे हाँ डोंट जी, हैव एनी पेशेंस एंड टाइम टू थिंक इट ओवर। और ये जी। सोचे कि भाई रिसाइकलिंग का क्या होगा, ये सोचे कि धरती के ऊपर ट्रैश बढ़ रहा है तो क्या होगा। दे आर हम्म, लीस्ट बॉदर्ड अबाउट, दे आर ओनली दैट्स बॉदर्ड अबाउट देयर इनकम, जी, देयर यील्ड। उनको तो करेक्ट। बस अपने टारगेट से मतलब है कि हमें इतना ज्यादा बनाना है, इतना ज्यादा भेजना है, बेचना है, एंड हम्म, थिंग्स लाइक दैट। तो एक तरह से एक चर्चा होनी चाहिए बीच बीच में, कहीं जी, कहीं ये आवाज उठनी चाहिए कि ये जो अननेसेसरी परचेजेज हो रहे हैं उस पे हम्म, कुछ लगाम लगे, कुछ कंट्रोल बिल्कुल हो तो अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल झा बिल्कुल। साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, अभी तो म्यूट कर we रखा have उन्होंने। only we have only 10 minutes left in the show, so let us welcome हाँ Braj Kishore Jha. He can put in जी, his viewpoint. We have only 10 minutes left. यस यस। आप लोग दो ब्रजकिशोर से, झा साहब कैन यू म्यूट योरसेल्फ? नहीं ठीक है, हम तो जी आप लोगों का देखे अभी 7:30 से शुरू करने वाले थे तो आप हाँ जी, फिर हाँ, अच्छा हाँ। थोड़ा और लेट हो गया। संजोग से दिखा हमको तो हम तो रांची कुछ आए हुए टेक्निकल हैं इश्यूज थे, और रात में लेट तो हो हम गया। इसमें थे और हम जी कनेक्ट होने का कोशिश किए थे। हम्म, कानपुर के आसपास थे जी जी। तो जुड़े थे, कुछ कुछ सुने अच्छा थे आप अच्छा। लोगों की बात। हम्म। और जो आप जो तो अभी जिस क्या चीज रास्ते को में हैं आप? हाँ, रास्ते में है या पहुंच गए? अभी रांची में है। पहुंच गए। रांची अच्छा, पहुंच गए हैं। पहुंच गए ना? हाँ, जी जी जी। और अभी रहेंगे कुछ दिन रांची में। हम्म, और हाँ, तो जो जो चीज बहुत चीज करना है यहाँ, सब लोगों का सहयोग का जरूरत होगा। और इसीलिए जी जी। अननेसेसरी चीज का परचेजिंग जो है खुद भी मत कीजिए और बच्चों हाँ को भी रोकिए। हमारे जी। बच्चे भी बहुत ऑनलाइन शॉपिंग होते रहता है और मैं हम्म, उस शॉपिंग से उतना नहीं नाराज होता हूँ हम्म, जितना उसका जो जी पैकिंग मटेरियल रहता है। और वो पैकिंग मटेरियल को हाँ फेंकने में हाँ। मुझे बहुत तकलीफ होती है। संजोग से बहुत। मेरे बेटे को भी तकलीफ होती बिल्कुल। है, वो रखे हम्म, रहता है और हाँ उसमें चूहा फिर आ जाता है। तो हाँ उस पैकिंग मटेरियल को मतलब रिसाइकलिंग जो है ना, हाँ वो जी, बहुत जी तरह से संभव है। हम तो उस सब में जो हमारे आईआईटीज में यहाँ धनबाद में है वो काफी कुछ रिसर्च किए हैं। उसको हम्म, कॉमर्शियलाइजेशन जो है वो सब लोग उस तरह से सोचते हैं कि एक जगह जमा करो और हम्म, बड़ा सा ये करो, लेकिन हम उन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं आईआईटीज को कि जो जहां पर जिस घर में ये बना मतलब वेस्ट प्रोडक्ट डेवलप हुआ या जहां से भी आया, वहां पर उसका कैसे रिसाइकलिंग हो सकता है जी इसके लिए रिसर्च करने का। तो हम हम्म, लोग पांडे जी रहेंगे और हम लोग जी आप जी लोगों की मतलब जो इच्छा रहेगी तो जरूर वो भी वो सब चीज होगा। ये सब हम्म, संभव है कि उसको जी जी। यूटिलाइजेशन अलग अलग तरह से संभव है। जो मतलब प्लास्टिक को छोड़ करके, हम्म। प्लास्टिक के लिए भी आईआईटी धनबाद में एक आईआईटी दिल्ली से पास आउट हैं, पीएचडी किए हुए और प्रोफेसर हैं। तो उनका प्लास्टिक के लिए बहुत अच्छा रिसर्च सब हुआ है। और जो बाकी चीज है वो तो बहुत आसानी से सब्जी के छिलके के साथ संभव है। और हम्म, लेकिन हम उसको मतलब हम्म। हर एक घर में खुद का उसका रिसाइकलिंग का व्यवस्था हो, ये कैसे हो सकता है, इस चीज के ऊपर में हम लोगों को उन लोगों को प्रेरित करना है काम करने के लिए। और हम हम्म, लोग उस चीज को बताएंगे कभी कि हम लोग हम्म, कैसे करने का। तो ये हम्म, मुख्य चीज ये है कि मतलब शॉपिंग तो लोगों को मतलब चूंकि एकाकीपन है सबसे बड़ा जो चीज है ना, लोग
मतलब जी आइसोलेटेड हो गए हैं, और मतलब समय काफी है, और सब कुछ बाजार घर में है। हाँ बाजार फिंगर टिप्स पर, घर में ही नहीं, फिंगर टिप्स पर है। तो ये सब प्रॉब्लम है, और उसके हम्म। चलते और भी बहुत सारा उनको लगता प्रोमिनेंस है कि हमारा जो ये एकाकीपन की जो समस्या है उससे निजात मिल जाएगी, कुछ अगर हम शॉपिंग कर लेंगे तो थोड़ा मन को चैन आ जाएगा, ऐसा हाँ उनको लगता है कि हाँ, इट बिल्कुल माइट बी बिल्कुल, ये कुछ वर्किंग लाइक ए यूजफुल हो जाएगा, टूल, मतलब कि हम यूजफुल है, ये चीज हो हाँ, जाएगा तो फिर टू बढ़ेगा। कोप विद डिप्रेशन और हम्म सैडनेस, ऐसा उनको लगता है। हम्म। दैट इज ट्रू। तो एक मेरा तरफ लेकिन बजाय इसके कई दूसरे काम भी हैं जो किए जा सकते हैं। ऐसा अगर डिप्रेशन है, सोशलाइज हुआ जा सकता है, कहीं जाके टहल के आ जाइए, किसी से मिल लीजिए, कहीं बैठ लीजिए, कोई अपने हॉबी के से रिलेटेड कोई काम कर लीजिए, किसी को पढ़ा दीजिए, बता दीजिए, है ना। तो इस तरह की चीजें नहीं नहीं कर रहे हैं लोग, चले जाते हैं शॉपिंग करने या ऑनलाइन कर लेते हैं, और फिर उनसे उनको लगता है कि हमें कुछ संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन शायद ये अप्रोच सही नहीं है। उन्हें चाहिए ये सब चीजें अपनाना, कि किसी से मिल लें, बैठ लें, कुछ टहल के आ जाएं, कुछ एक्सरसाइज कर लें, योग कर लें, ध्यान कर लें, या किसी को कुछ सिखा दें, किसी के भले के लिए कुछ कर लें। ऐसे अगर मेजर्स लिए जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है, rather than going for shopping for releasing our distress। उसके अलावा तो ये ये, सारी बातें हैं, ये विषय बहुत अहम है आज के हाँ जी, टाइम में, इस पे और भी ज्यादा चर्चा की जरूरत है। और जैसा कि झा साहब बता रहे थे कि इसमें पैकिंग मटेरियल इतना ज्यादा यूज होता है बिल्कुल, कि आजकल पैकिंग में भी बहुत ज्यादा रिसर्च और ये सारी चीजें जाने लगी हैं। तो वो लोग जब पैकिंग के बारे में सोचते हैं या करते हैं तो पर्यावरण का तो बिल्कुल ही ध्यान में नहीं रखते होंगे, बिल्कुल। तो जितना बहुत भी अट्रैक्टिव पैकिंग हो सके, महंगा पैकिंग हो सके, ज्यादा पैकिंग हो सके, हेवी पैकिंग हो सके, इन सब चीजों अल्टीमेटली पे कूड़ा ही ध्यान देते हैं। बनता है, अल्टीमेटली कूड़ा लेकिन बन वो जाता अल्टीमेटली कितना नुकसान पहुंचा रहा है हमें, है। और क्या उसमें हाँ, पैसा भी लगता है और वो किसी काम का नहीं। एक बार जब वो अनपैक हो गया तो किसी काम का हाँ नहीं। जी, बेकार है उसके बाद। तो ये विषय काफी अहम विषय है कि शॉपिंग पे हम लोग कैसे इसको रैशनलाइज कर सकें, कैसे इस पे कंट्रोल ला Vinay सकें। bhai, we have जी exceeded our time of the show. हाँ, वी शैल Can I वाइंड अप द stop the शो। recording? हाँ जी, यस, so we thank you झा everyone साहब का for बहुत बहुत शुक्रिया।